Assalamu alaikum everyone. Hope all of you are doing well. Today we have tried again to use this board. Let's hope that it is of some use. Teaching grammar is very difficult without using a board. And I frequently use board in my classroom, so it's been a problem for me here because I believe that board is very helpful in teaching, and it also gives a sort of concentration to the viewer, to the students in the class or people in the class. Let's just revise what we have done, adding something new into it. Right? We've studied sentence, right? And we studied sentence with its parts: subject plus verb plus object slash complement and plus adverb. Right? So this has been the structure of the sentence. हमने इसको सेंटेंस का स्ट्रक्चर किया है. सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि ये एक मिशन नाउन होएगा या नाउन इक्विवेलेंट होएगा. नाउन होगा या नाउन इक्विवेलेंट होएगा. Verb will always describe either action or state of being or being. Right? Object is again sorry, a noun. Complement जो है ये एक noun भी हो सकता है. Complement can be a noun. It can be an adjective or it can be an adverb. It can be an adverb. So this is a complement. An adverb. Again, adverb describes, अभी हम इसके ऊपर भी करते हैं. Adverb can be a noun, can be an adverb, can be a prepositional phrase. PP अगर इसको करें तो N A और S N plus adjective plus adverb or noun, adverb or preposition. This is the structure of a sentence. ये sentence का structure है. Sentence इससे बाहर नहीं निकलता. चाहे वो छोटा sentence हो, जैसे हमने उस दिन का laughed और he laughed, और चाहे वो sentence हो, जी लाना ने अपनी किताब में लिबरेटर जो है उसका एक है, वो पुराने लोग जो आप तो सारे यंग होंगे, जो पुराने लोग थे उन्होंने पढ़ी होगी. उसमें वो एक सेंटेंस लिखता है, फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करता है. Nature had gifted him with giant strength, insofar as his determination was concerned to accomplish tasks that he set before himself, but it had clothed that will in a frail body, unable to keep pace with the gigantic force of his restless mind that wanted to sweep away all the obstacles that lying as hindrance in the way of his people. It makes one sentence, starting with a capital letter, ending with a full stop. इसमें अगर it's not a simple sentence, it's a complex sentence having, बल्कि it's compound complex sentence है. लेकिन यह है कि it is a sentence, right? So whenever we have a sentence, we can have
SVOCA। अब आपने वर्ब को लास्ट टाइम देखा। Actually, what comes after the verb determines on the type of the verb. आपको verb के type जो थे वो करवाए थे कि verb जो है it basically it's describe action or states, और इसका either it's this an action verb है तो it can be an intransitive verb or transitive verb or complex verb of incomplete predication और fricative verb वगैरह। और अगर ये state को show कर रहा है तो it is a linking verb। और linking verb के बारे में खासी तफसील भी की थी कि linking verb जो होता है it's not complete। Action verb can sometime with a single action verb we can complete a sentence. As I just said, the student laughed, right? But the with the linking verb, right? We cannot complete a sentence simply by bringing subject like Ali and bringing a linking verb like is, appears, seems, becomes, etc. We need to bring something that completes the meaning of the verb or predication, which we call complement. And this describes the subject. That's why we call it subjective complement. And again, we studied one type of a sentence, which I told you that sometimes, despite being having a subject, a verb, action verb, an object, it requires something else to complete its sense, right? Despite the fact that the sentence has all these three constituent parts, three elements, which can make any other sentence a complete sentence, but still a sentence like they made him is incomplete. One feels that the actual predication or khabar is not being given fully. So for that matter, the moment we said they have made him the captain of the team. So the captain of the team comes and completes the sentence. This is not the subject complement. Why? Because it's not referring to the subject, it is referring to the object before it, and this is objective complement. Objective complement. And objective complement comes after the object. A thing that needs to be understood that a double transitive verb or ditransitive verb which has two objects, one is direct object and other is indirect object, is different from this type of sentence which we say that complex verb or fictative verb, because when we have two objects, they are two different things, not the same. But when we have objective complement with the object, they are actually one and the same thing. One and the same thing. And as we just said that a complement can be a noun, an adjective, or an adverb. So similarly, an objective complement can be a noun, an adjective, or an adverb, right? Objective complement can be any of these three parts of the speech, right? So this is it. So I told you that for subject, we have who or what. Who or what. And action or state. बेशा मेरे बड़ी कोशिश थी Object we अपने have मोबाइल से कनेक्ट who. करना If we have direct मामी object, गवाह वा we have whom or what. And if we have indirect object,
My board is small, so I have to. Stop So करो then it's to or for whom, or देखती हूँ बेटा to or for what. And if it's subjective complement, we know that we recognize the verb as objective, as state verb. So whatever comes after, we can write what after, again, who, or where. So they can be very helpful. When it comes to adverbs, we when, where, how, why, how often. So all these are adverbs. Adverb is a very mobile unit in the sentence. It can come anywhere in the sentence, in the beginning, in the mid place, after the in the end of the sentence, and we can have many adverbs in the sentence. So let's see that how actually what are the different types of sentences we just studied that day. Uh, how many types of the sentence are available uh, here with us, right? So let's look at this. Just a minute. Since I'm away from the the screen, so if you have any question, you can write it down. We can come back to it, and we can answer those your questions, right? So this is very important. Just try to draw it on your own so that you understand. I'm sending you the handouts on verb as early as possible, because I have to make certain amendments, certain cut downs from the chapter of the my book. So I have to I'll be sending you soon, as I send you the chapter on noun on sentence. So for example, let's take a look at this. We have a sentence subject, and we make a sentence. If we have a linking verb, right? So sentence will be like this. The moon appears very, sorry, bright. So here we have a linking verb. Linking verb. So this is our subject, and very bright is our complement, subjective complement. Bright is very bright. Bright is an adjective. So we have a word before bright, which is adverb. Adverb always modifies an adjective. Adverbs modifies an adjective, right? ये डिग्री को बयान कर रहा है, ब्राइट चमकदार, वेरी ब्राइट बहुत चमकदार, यानी डिग्री ये होती है, राइट? आप you can bring another an adverb after it, and you can say today, right? You can say today. So what's the verb? Appears. What appears? The moon appears. What? Very bright. And what left is today. Appears when? Today. So ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा. उसके बाद हम लिंकिंग वर्ब के बाद हम जाते हैं लेट्स से ट्रांजिटिव वर्ब के सॉरी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट? He laughed. अब laughed verb है और he
सब्जेक्ट है। अब लाफ जो है ये इसके साथ हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ही laughed out loud, ये भी हम कर सकते हैं, एडवर्ब भी जो है वो हम ला सकते हैं, राइट। और इस ये भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल he went to school। अब इसमें व्हाट्स द वर्ब, ये इसको आई वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, आई वर्ब। व्हाट्स द वर्ब? वेंट। हु वेंट? ही। अब went what, that's not possible because it's an intransitive verb। intransitive verb क्यों है कि एक एक्शन जो है वो सब्जेक्ट ने किया, लेकिन ये एक्शन किसी दूसरी चीज पे नहीं हुआ, ये एक्शन सब्जेक्ट के अपने ऊपर ही हुआ, तो that's why it's an intransitive verb। और इसको इसके बाद अब जब वर्ब प्लस व्हाट उस वक्त आता है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। तो अब वर्ब, अब ये क्या बच गया? ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो याद करें, हमारे पास एडवर्ब हो सकता है, राइट। अब हम कहेंगे वेंट व्हेन, अब नहीं है। वेंट हाउ नहीं है। वेंट वेयर? स्कूल। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया। इस तरह क्वेश्चनिंग करेंगे तो आपको बहुत सी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब हम एक और सेंटेंस लेते हैं और ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है, राइट। ट्रांजिटिव हम कहते हैं अली wrote a letter at school today, yesterday। Right? Up transitive because the verb has affected something else. So what's the verb? Wrote. Who wrote? Ali subject. Wrote what? Letter. सीधा पढ़ा हुआ letter object, right? अब क्या बच गया? At school yesterday। अब object आ गया, ठीक है। तो अब अगर हम let's say कि को कहता है जी डबल, डबल तो नहीं है इसमें, तो हम करेंगे wrote to whom। to whom इसमें नहीं है, राइट। तो इसका मतलब इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब wrote how नहीं है। wrote when yesterday, ये when yesterday ये एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया। और बाकी क्या बचा है? स्कूल। रूट वेयर? एट स्कूल। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया। ये शुरू में भी आ सकता था, एट स्कूल अली रोट अ लेटर यस्टरडे। यस्टरडे भी शुरू में आ सकता है, यस्टरडे अली रोट अ लेटर एट स्कूल। अब हम एक डाई ट्रांजिटिव लेते हैं। सना gave me a book last week। अब what's the verb? Gave। Who gave? Sana। Gave what? A book। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट करना है और इसके लिए हमें टू के फॉल लगा। टू होम? टू मी। ये भी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये आईओ आ गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बाकी क्या बचे? लास्ट वीक। अब इसका मतलब है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट आ गया तो एडवर्ब भी होगा। लेट्स ट्राई। गिव वेयर नहीं, गिव व्हेन लास्ट वीक, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब हम फिक्टेटिव या वर्ब ऑफ they made him president। अब what's the verb? Made। Who made? The subject। Made what? Whom? Him। हमने to whom नहीं करना,
हिम उसके जवाब में आ जाएगा, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब प्रेसिडेंट, अब दे मेड हिम व्हाट प्रेसिडेंट, अब ये हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आ गया, क्योंकि प्रेसिडेंट कौन है, हिम, और हिम कौन है, प्रेसिडेंट। अगर इधर तक रखते थे मेड हिम तो वो इनकम्प्लीट एलिमेंट जो था वो रहता। तो ये हमारे लिए जो था वो हमारे लिए प्रॉब्लम होता। तो इसलिए अब ये नाउन है, मैंने आपको कहा ना कॉम्प्लीमेंट कैन बी ए नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। इसके वो आप मिसालों में आप देखेंगे। तो दे मेड हिम प्रेसिडेंट, तो ये हमारे सेंटेंस सारे वर्ब आ गए, ट्रांजिटिव आ गया, फिर डेटिव को मैं ये वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन या कॉम्प्लेक्स आ गया। तो ये हमारे सेंटेंस जो है वो 1 2 3 4 5 6, कुछ 6 7 किस्म के हमारे सेंटेंस जो होते हैं ना वो टाइप्स होते हैं। बाकी फिर इनकी एक्सटेंशन होती हैं। ये दे आर ऑल सिंपल सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस मिलके आगे और बड़े सेंटेंसेस जो हैं वो बनते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये ब्राइट डे, ये एडवर्ब है, राइट। अब इसमें एक बात अगर आप देखें, इसके अंदर ये अगर हम द मून अपीयर्स वेरी ब्राइट, अब हम करेंगे कब, तो हम क्या करेंगे, कब की क्या अंग्रेजी है, व्हेन। वेयर, तो हम क्या करेंगे, इन द स्काई, तो वेयर करेंगे। तो बेसिकली हमारे सेंटेंस के अंदर जो एक्चुअल वैल्यू है चीजों की, जैसे सब्जेक्ट की हमने हुआ, इस वैल्यू को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ये थोड़ा सा अगर आप इसको करने में ट्राई कर रहा हूं कि अगर आप इसको साथ साथ करते जाएं तो बहुत सी चीजें जो है वो आपको नजर आ जाएंगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बहुत से आपके कॉन्सेप्ट, क्लॉजेस के कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक हो जाएंगे। अब एक तो यह है कि वी डोंट हैव मच टाइम टू, हमने वो आगे भी जाना है टेंसेस वगैरह की। इसी इसी मैं आपको दोबारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। अब सब्जेक्ट क्या है, टू, इसको इस तरह करते हैं, सब्जेक्ट क्या है, हु है या व्हाट है। वर्ब क्या है, एक्शन है या स्टेट। हम स्टेट ऑफ बीइंग को स्टेट फॉर। ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो होम या व्हाट है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, वो टू या फॉर, होम और टू या फॉर व्हाट है। कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट व्हाट है, विच है या एडवर्ब है तो व्हेन है, वेयर है, राइट। और एडवर्ब क्या है, वेयर है, व्हेन है, व्हाई है, हाउ है, हाउ ऑफन है। ये ये आपके सेंटेंस का स्केलेटन है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर सारा सेंटेंस होता है। अब मिसाल के तौर पे एक बार मैं आपको बताऊं, आमतौर पे ये जो मैंने लिखी है ना, अगर एक सेंटेंस के अंदर आपको को मिनी सेंटेंस मिले, राइट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अगर इनमें से स्टार्ट हो रहा है, राइट,
तो इसका मतलब ये है कि ये जैसे नाउन की मिसालें है ना, हु और व्हाट, राइट। तो इसमें ये नाउन क्लॉज बन जाएगा। वो अगर whom और what है तब भी नाउन क्लॉज बन जाएगा। अगर टू whom टू what वगैरह के साथ है तो तब भी नाउन बनाए। और अगर where के साथ कोई सेंटेंस है तो वो एडवर्ब क्लॉज है। when के साथ है तो एडवर्ब क्लॉज है। why के साथ है तो एडवर्ब क्लॉज है। how के साथ है तो वो एडवर्ब क्लॉज है। how often के साथ है तो वो एडवर्ब क्लॉज है। देखें, he met me yesterday। अब he met me yesterday में yesterday when yesterday एडवर्ब है। तो अगर एडवर्ब हमारा वर्ड होगा या फ्रेज होगा, he met me in the morning फ्रेज है, तो ये बगैर ये यानी when वर्ब प्लस when में जवाब आ जाएगा। लेकिन अगर ये he met me when I was going there, तो ये जब when फिक्रे के अंदर आ जाएगा, फिक्रे के अंदर यानी वो सरफेस कर जाएगा, तो इसका मतलब ये है व्हेन आई वाज देयर जो है ये एडवर्ब क्लॉज है, ये एडवर्ब टाइम क्लॉज है। आई लेफ्ट हिम वेयर ही हैड आस्क्ड मी। अब लेफ्ट वेयर ही हैड आस्क्ड मी, तो इसका मतलब ये है कि वेयर ही हैड आस्क्ड मी ये हमारा एडवर्ब क्लॉज जो हो जाएगा। हाँ, और नाउन क्लॉज आमतौर पे व्हाट, हु या दैट के साथ भी शुरू होते हैं, दैट के साथ भी शुरू होते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इट डजंट मीन कि ये और के साथ नहीं शुरू होते हैं। रिमेंबर दैट असल मसला हमारा वो फिक्रा है, वो हमारा जो मेथड है ना, व्हाट्स अ वर्ब, हु प्लस व्हेन प्लस वेयर, तो ये इसके जवाब में जो कुछ आता है वो एक्चुअली हमारा वो वाला कॉन्स्टिट्यूएंट बनता है, ना कि कोई वेरी पर्टिकुलर जो है वो कंजंक्शन, जैसे कि ये है। इससे हमारी चीजें जो है हमें बहुत सी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन असल चीज वही वो हमारा वो स्ट्रक्चर है। व्हेन, व्हाट्स अ वर्ब, हु डज इट, डज व्हाट, does where, does why, does how, does when, etc. ये हमारा सेंटेंस का। तो अगर आप इसके ऊपर ग्रिप करेंगे तो बच्चों को आपको सिखाना बहुत आसान होगा। दैट इज सेंटेंस कैन इजीली बी ग्रिप्ड, यू कैन इजीली नो कि वो क्या कहते हैं, ये हमारा वर्ब है, तो ये उसका ये क्लॉज है, ये टाइम क्लॉज है, ये प्लेस क्लॉज है, ये फ्लंक क्लॉज है, ये डायरेक्ट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। सारे जो it's basically the key to open up all the locks। अब मिसाल के तौर पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, he said that he was absent। अब what's the verb? Said, main verb, ये हमारा main। Who said? He, subject। Said what? That he was absent। अब ये पूरे का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट आता है। दैट जो है ये हमारी कंजंक्शन है। अब इधर आगे फिर हमारे पास एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट आ रहा है। व्हाट्स द वर्ब? वाज। हु वाज? ही। वाज व्हाट? एब्सेंट। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट। ये पूरे का पूरा हमारा जो है वो नाउन क्लॉज हो जाएगा। ये क्योंकि ये नाउन क्लॉज क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इज अ नाउन क्लॉज, राइट। इसी तरह what he said was true। अब इसमें देखिए, अब what के साथ सेंटेंस शुरू होगा तो मैं इसको नहीं, इससे इसके इस वाले वर्ब को नहीं लूंगा, मैं इस पूरी यूनिट को what he said। अगर इसमें एक सब्जेक्ट है और इसमें एक वर्ब है, राइट। what हमारा कंजंक्शन है, राइट। लेकिन what's the main verb? was। अब ये हमारा मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है।
अब इसके पहले मैंने who नहीं लगा सकता, मुझे पता है कोई बंदा नहीं है, what लगाऊंगा, what was what he said। अब इसके बाद true है, was हमें पता है लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आना है, और ट्रू जो है ये एडजेक्टिव है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो ये हमारा ये सेंटेंस पूरे का पूरा, लेकिन सेंटेंस इज अ कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे हमारे पास एक हमारे पास एक क्लॉज है। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पूरे का पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जिसमें सब्जेक्ट हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। द सेम वे ये ही सेड दैट ही वाज एब्सेंट पूरे का पूरा हमारा सेंटेंस है, हमारा पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसमें एक हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक वर्ड नहीं है, बल्कि एक क्लॉज है। क्लॉज मीन अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। Obviously, it's something very new for you, most of you. I don't know which of you have ever studied such things, but if you have interest in grammar, this can be very interesting. I mean, it's like learning a skill, like playing a game. So with the help of these, you can analyze sentence, you can teach the same analysis to your student, and this can be very beneficial for the student, especially if they are taught at an early levels. They can be very good at grammar. They will have an interest for learning grammar. So we'll see. Today, last time, I just see when I go to my laptop, if there is any question regarding the previous verbs. So if there is no question regarding the verbs, I'll be sending you the handouts as I told you. We'll today look at a very briefly at parts of speech. We have studied in detail the verb, because verb is the basically key to open up the log of every sentence. But we'll look at other parts of speech, they are important. But if I go into detail, that will require days, as we have to finish uh, covering most of the topics by the end of this month. And we have Eid days and the holidays associated because of Eid. So we'll look at the thing a little briefly, but they'll be sufficient for most of you. And even if there are any questions, we will be able to answer you, and we will be sending you handouts. So I hope that after having these sessions, it will be easier for you to uh, and understand the handouts. They are from my book, which I am preparing for the matriculation. And they will, all the concepts that I have studied so far are very helpful if you study our grammars from class 1 to class 5. Now you will find some connection why we started with the with the structure of the sentence. So let me come to the laptop and see if you have. So far as connection is concerned, connection is the quality of connection is dependent upon your your mobile frequency. So if any problem, I'm sorry, but from our side, if the connection is weak, then you can find that what type of problem it is there, right? So if any question regarding the discussion we have made on whiteboard, please do let me know, or we can start it. You start.
Yes, all the lectures are being uploaded. Inshallah Ta'ala, we have uploaded two, and the rest of the two of the previous week will be uploaded today. And even today, it takes time because there are some editing required for before it's uploaded. So Inshallah Ta'ala, and beside, I'm also sending you the handout. So I think you will have fewer problem. So last session today, inshallah ta'ala, will be so let's look at parts of speech. What do parts of speech say? You will, inshallah ta'ala, Miss Mavish, you will get it, don't worry. Right? So parts of speech. A noun is the name of a person, place, thing, or an idea, whatever exists, we assume can be named, and that name is a noun. All the objects that we can see, hear, taste, touch, or smell are included in the word noun, beside things that we can think of but cannot feel by senses, just as love, hate, mercy are also noun. So I can go more in detail on this aspect, but I'm sure that if you are teaching English, you will be very well familiar with all these things. Whatever exists is a noun, right? Anything that is tangible or intangible is a noun, right? So a person, people, places, as you can see, things, ideas, right? Honesty, kindness, childhood, youth, they are all nouns. So basically, if the the universe started with a noun, right? So the first things that started in it. So it was action that distinguished nouns. मैं ये कहा करता हूं कि अल्लाह ताला नाउन है, लेकिन उसने जब खलक किया, फेल किया, तो उसके नतीजे में जो है वो सारी कायनात जो है वो नोन हुई। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सेंटेंस की जो है वो वर्ब में है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम खुदा की खुदा को हम उसकी तख्लीक के, उसके कामों से, जो उसकी तख्लीक में है, उससे हम उसको रिकग्नाइज जो है वो करते हैं। तो nouns often follow words like a, an, the और the। ये noun का एक, हम इसे कहते हैं, ये इसका एक मानी डिस्टिंग्विशर है कि noun से पहले या a होगा या an या the, द। ये हाँ, लेकिन जो नॉन काउंट होते हैं उनके से पहले ये नहीं आता। अब a noun is a naming word bringing directly to mind an object, thing, substance or idea। और यहाँ वो प्रॉपर होता है, किसी खास बंदे का नाम होता है, यहाँ कॉमन होता है। जब वो कॉमन होता है तो उसके अंदर जो है वो क्लास नेम्स होती हैं, यानी जैसे मिसाल के तौर पे चेयर है, टेबल है, बॉयज है, गर्ल्स हैं, मेन है, विमेन है। तो ये क्लास नेम है कि एक को आप बोलते हैं तो उससे सारी क्लास जो है वो मुराद होती है। इसमें इंडिविजुअल भी हैं, फर्द भी होते हैं, और इसमें मटेरियल नाउन भी जो है वो कॉमन नाउन के अंडर आ जाते हैं, जैसे वुड है, आयरन है, और दूसरे मेटल जो हैं वो आ जाते हैं। और कलेक्टिव नाउन a group of people or thing। collective nouns a group of people or thing referred to as a single entity, या वो collectively referred to, यानी किस क्लास है तो consist of boys है, लेकिन ये collective noun कहलाएगा क्लास। और इस तरह के बेशुमार नाउन है, ये आपके लिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नॉट शोइंग क्वालिटी, नाउन शोइंग क्वालिटी और एट्रीब्यूट, जैसे क्वालिटी जो थी ये ऑनेस्टी है, जैसे ब्यूटी है, तो ये नाउन जो है वो क्वालिटी और एट्रीब्यूट जो है
किसी चीज की सिफ्त को शो कर रहे होते हैं। और वर्ब फॉर्म्स यूज्ड एज नाउन टू शो क्वालिटीज है। वर्ब की कुछ फॉर्म्स भी जो होती हैं वो शो कर रही होती हैं क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स को। अब वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म होती है? ये वर्ब की फॉर्म जो है खास तौर पे बेयर इन्फिनेटिव है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसको मेरा ख्याल है नेक्स्ट में आई बी टचिंग, तो इसको जरा थोड़ा नेक्स्ट के लिए रहने दें। लेकिन वर्ब की फॉर्म भी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाती हैं और नाउन को शो कर रही होती हैं। अब नंबर ऑफ नाउन, अब नंबर ऑफ नाउन से मतलब यह है कि नाउन का जो वाहिद जमा है, सिंगुलर प्लूरल है। in noun fell into different classes both for grammatical and semantic reason। grammatical reason के उसके साथ s लग जाता है, semantic reason के उसके मफहूम के अंदर एक जमा का मफहूम जो है वो पाया जाता है। semantic का मतलब होता है मीनिंग, राइट। इसके टू ग्रुप होते हैं, काउंट नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, मैथ नाउन जिनको हम नहीं गिन सकते। Count noun names anything that can be counted: 4 books, 2 continents, a few dishes, a dozen buildings। और mass noun का और नॉन काउंट नाउन भी इनको कहते हैं, नेम समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड: वाटर, एयर, एनर्जी, ब्लड। अब इनमें ये आप ऊपर देख रहे हैं तो इनके साथ कोई ना कोई जो है वो मॉडिफाइंग वर्ड आया हुआ है, जैसे 4 है और यहाँ नंबर को बताने के लिए 2 है, अ फ्यू है, अ डजन है। लेकिन इनके साथ ए वाटर नहीं आएगा, एन एयर नहीं आएगी, एनर्जी नहीं आएगी, एन अब ब्लड नहीं आएगा। इनके साथ आर्टिकल नहीं आता। द दी आ सकता है लेकिन ए और एन जो है वो नहीं आता। हाँ, एक बात याद रखिएगा, कभी कभी ये होता है कि कोई नाउन काउंट नाउन जो है वो मैस नाउन बन जाता है या मैस नाउन काउंट नाउन बन जाता है। और उधर वो अ, उसका कोई ना पार्टिकल्स मुराद होते हैं या उसकी कोई ना कोई है एक सिंगल इवेंट मुराद होता है। मिसाल के तौर पे मैं एक्सपीरियंस कहूँ तो एक्सपीरियंस बेसिकली एक काउंट नॉन काउंट नाउन है, लेकिन इट वाज एन एक्सपीरियंस टू टीच यू पीपल। तो इधर मैंने एन कह दिया, तो इसको अगर मैं खोलूंगा तो ये होगा एन इवेंट ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का एक वाक्या, तो इवेंट जो है वो अंडरस्टूड उधर है। तो बहुत से काउंट नाउन में ये होता है। एक एक काम जरूर कीजिएगा कि डिक्शनरीज को, मैं आपको डिक्शनरीज खोल के भी दिखा दूंगा, डिक्शनरीज को बहुत अच्छी तरह देखना सीखें। डिक्शनरी कैन हेल्प यू, आई मीन द ग्रेटेस्ट टीचर इज डिक्शनरी। if you have a grip to understand the dictionary, you can really know a lot. But nowadays it's just in your hand. You don't have to carry the big volume। You have your mobile and it carries a dictionary with you। और अच्छी उसकी में डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की, कॉलिंस की स्पीकिंग डिक्शनरी, दूसरी मीनिंग डिक्शनरी, सारा कुछ आपके पास है। Some nouns are countable in English but uncountable in English but countable in other language। Here are some of the most common of these uncountable nouns together with some related countable expression। राइट, वो उसकी मिसाल इधर नहीं दी हुई क्योंकि मैंने किताब में से जरूरी है। मिसाल के तौर पे जैसे खबर है और अखबार हमारी उर्दू में जमा हो जाती है, लेकिन इसकी अगर हम अंग्रेजी कर लें तो न्यूज़ है और इसकी प्लूरल नहीं होती, न्यूज़ेस नहीं होती। बस वो गलती से कभी किसी से निकल भी जाता है न्यूज़ेस, लेकिन यह है कि वो नहीं होती। इसी तरह इतला है उर्दू में और इतलात उसकी जमा आ जाती है, लेकिन इंग्लिश में इंफॉर्मेशन है और तो इंफॉर्मेशंस नहीं होता। तो ये इस तरह के और बेशुमार नाउन है और हर किताब में दिए हुए होते हैं, जो किताबें दी हैं उसमें भी हैं, तो आप उनको देख लें। कोई कॉन्सेप्ट में कोई बंदे के कमी ना हो तो ये बाकी सारी चीजें बंदा इजीली इसको देख सकता है। The relation in which a noun stands to some other word or the change of form by which this relation is indicated is
is called its case. यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है। अब ये देखिए, हमने अभी सेंटेंस को का स्ट्रक्चर खोला, उसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, एक क्या कहते हैं, एक एडवर्ब है। अब नाउन, ये केस, अगरचे इंग्लिश केस लैंग्वेज नहीं है, अगरचे इंग्लिश केस लैंग्वेज नहीं है, ये बेसिकली ग्रीक और लैटिन जो थे वो केस लैंग्वेज थे। उसकी वजह क्या है कि इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर है SVOCA, इसलिए इसकी प्लेसेस जो हैं वो आमतौर पे तय हैं। लेकिन ग्रीक में ये होता था कि लफ्ज सब्जेक्ट फिक्रे में कहीं भी आ सकता था, ऑब्जेक्ट फिक्रे में कहीं भी आ सकता था, लेकिन उनके साथ कोई ना कोई सफिक्सेस, लायके लगे हुए होते थे कि जिनको जिनकी जो पहचान होते थे कि ये लफ्ज जो है ये फाइल है, सब्जेक्ट है, ये मफूल है, ये किस हालत में है। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोग कुरान शरीफ तो सब में पढ़ा हुआ होता है, तो अगर मैं अरबी के एक जुमले का मिसाल दूं, ज़रब ज़ैदुन खालिदन, तो अब देखें कि ज़ैदुन मैंने कहा है तो ये डबल, इस पे पेशें लगी हुई हैं तो इसका मतलब ये फाइल है, और खालिदन इसमें दो जबरें लगी हुई हैं तो ये मफूल है। अगर मैं इसको कह दूं कि ज़राबा खालिदुन ज़ैदन, तो अब खालिदुन कह दिया तो फाइल खालिद है और मफूल वो ज़ैद है। तो इसको हम केस कहते हैं, हालत कहते हैं कि नाउन की कौन कौन सी हालतें जो है वो थी। अच्छा, ये नाउन की हालतें ग्रीक में और लैटिन में तो थी, लेकिन अंग्रेजी में कोई ऐसा सफिक्स नहीं लगता कि जिससे नाउन की हालत जो है वो पता लग जाए सके कि नाउन जो है वो उसकी यानी वो हालत से मतलब वो सब्जेक्ट में है, यानी सब्जेक्टिव केस में है, या ऑब्जेक्टिव केस में है, या पोजेसिव केस में है, या एक्यूजेटिव केस में है, या डेटिव केस में है, सिवाय एक जेनेटिव केस जिसको हम पोजेसिव केस कहते हैं, जिसमें एक अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। उस अपॉस्ट्रोफी से हमें पता लग जाता है कि यहाँ नाउन जो है वो वो पोजेशन, उसके ऊपर पोजेस है, वो किसी पोजेसिव केस में है। तो इंग्लिश में देर आर 5 केसेस इन इंग्लिश: नॉमिनेटिव, द वोकेटिव, द जेनेटिव, द एक्यूजेटिव एंड द डेटिव। अब नॉमिनेटिव जो है ये अगर नाउन जब फाइल की जगह पे होता तो उसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस है, ये फाइली हालत में है। वोकेटिव, आपको याद होगा कि मैंने एक पिछले जब हम कर रहे थे सेंटेंस के टाइप, तो मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंस में कहा था कि इसमें कभी कभी ये होता है कि इसका सब्जेक्ट जो यू होता है वो अंडरस्टूड होता है, वो नहीं आता, कभी वो यू आ जाता है या उसकी जगह पे यू से जो शख्स मुराद होता है वो भी आ जाता है। तो मैंने कहा था इसका ये खास एक लफ्ज है जिसको हम कहते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं ये कहूं सिट डाउन, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अगर मैं इसमें यू सिट डाउन, यू अंडरस्टूड है, अगर मैं यू बोल दूं यू सिट डाउन तो तब भी सिट डाउन ही रहेगा। या अगर मैं उसकी जगह पे यू का नाम ले लूं, मैं कहूं सना सिट डाउन, अली सिट डाउन, तो अब अली और सना जो है ये सब्जेक्ट तो है लेकिन इस फिक्रे के सब्जेक्ट नहीं है, ये एक किसी वक्त जो स्पीकर है एम्फेसिस करने के लिए ले आया। तो इस वक्त ये नाउन जो होगा इसको हम वोकेटिव केस कहेंगे, अगरचे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये लैटिन ग्रीक है, लेकिन क्योंकि ग्रामर है और ग्रामर में चीजों को समझना होता है, तो ये वोकेटिव केस नदाए नदा इसको हम कह देते हैं, निदा में है। जेनेटिव केस अपॉस्ट्रोफी यानी पोजेशन को शो कर रहा है, यानी स्कूल्स, स्कूल्स बस जो है हम इसको कह दें स्कूल की बस, नहीं, तो ये जेनेटिव केस जो है या पोजेसिव केस बन जाएगा। अब ये रह गए द एक्यूजेटिव और डेटिव केस। अब द एक्यूजेटिव इसमें द जेनेटिव इज ओनली केस दैट इज नाउ इंडिकेटेड बाय केस एंडिंग और चेंज ऑफ फॉर्म।
तो other cases have lost their case ending and are indicated by grammatical relations, right? अब इसमें नॉमिनेटिव केस तो हो गया, मैंने आपको बता दिया। अब जेनेटिव केस जो 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 एक्यूजेटिव केस है, अगर नाउन हमारा सब ऑब्जेक्ट की जगह पे होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे होगा, तो वो उसको हम एक्यूजेटिव केस में कहेंगे। और अगर वो इनडायरेक्ट की जगह पे होगा तो हम उसको डेटिव केस जो है वो कहेंगे। अब मिसाल के तौर पे इसमें फिक्रों को देखें, रेन फॉल्स, तो रेन हमारा सब्जेक्ट है, तो ये नॉमिनेटिव ऑफ सब्जेक्ट है। आर यू कमिंग माई फ्रेंड, अब आर यू कमिंग माई फ्रेंड में, अब माई फ्रेंड जो है ये इस फिक्रे का हिस्सा नहीं है, सब्जेक्ट तो यू आ गया है। तो अगर ये सिंपल ये स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये इम्पेरेटिव नहीं है, लेकिन ये माय फ्रेंड यू की एक्सटेंशन है, तो इसलिए ये वोकेटिव केस कहलाएगा। एक्यूजेटिव इज द केस ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। The man killed the rat. The rat is the accusative case. Dative is the case of the indirect object. He gave the man a rupee. अब यह the man gave what? A rupee, or to whom? Man. तो ये हमारा dative case है। The genitive case usually denotes relationship or ownership. It's formed by adding apostrophe s, which is called apostrophe to the noun. Singular noun man's, plural noun men's. The old inflection for the genitive case was es. es यानी पुरानी अंग्रेजी में es होता था जेनेटिव केस के लिए, और इसीलिए ये कॉमा जो आप देखते हैं एस से पहले, ये कंट्रैक्शन की अलामत है। ये बताती है कि यहाँ कोई लफ्ज जो है वो यहाँ से कोई लफ्ज मिस हुआ हुआ। When the e was omitted, the absence of e was indicated by the comma और apostrophe as moon, moons पहले होता था ओल्ड इंग्लिश में, अगर आप शेक्सपियर वगैरह को पढ़ रहे हैं। मून्स, अब ये apostrophe नहीं हो आ गया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लें। अब नाउन में एक और काम है, जेंडर। द नाउन इज कॉल्ड द डिफरेंस noun in what is in nature, what in nature is called the differences in sex in grammar called the difference of gender। यानी जो यानी मुख्तलिफ असनाफ होती हैं इंसान की, उसको जेंडर कहते हैं, और चार हैं। एक नाउन डिनोटिंग मेल एनिमल्स, उसको हम मैस्कुलिन मैस्कुलाइन नहीं कर देना, मैस्कुलिन। nouns denoting female animals, एनिमल्स आपको पता है इंसान भी तो एनिमल है ना, इसलिए हम इसको कहते हैं। तो फेमिनिन, फेमिनाइन नहीं इसको कहना है। और नाउन डिनोटिंग एनिमल ऑफ आइदर सेक्स, कॉमन नाउन। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं टीचर, इट कैन बी अ ही टीचर और शी टीचर, अ डॉक्टर ही और शी, तो दे आर कॉमन, राइट? दैट इज थिंग्स विदाउट लाइफ, ये न्यूट्रल जेंडर है। यानी टेबल है तो ये न्यूट्रल जेंडर है। तो जेंडर इज ऑफ फोर: मैस्कुलिन, मेल, फेमिनिन, फीमेल, न्यूट्रल, neither male nor female, and common, either male or female। तो क्वेश्चन, और आप, मुझे उम्मीद है आप थके नहीं होंगे। हाँ, हम आगे कर सकते हैं ना? Oh, great. So he's my brother. This is my watch. Ali is the boy who brought your message.
Who are you? Few have realized the truth. The player is mine. Here is the great man. Here is the great man himself. They don't see each other anymore. He availed himself of the opportunity. So there are 9 sentences before us. So what they have some bold word. They have some bold word. They refers to pronoun. अब pronoun को हम define करते हैं. Pronoun is a word that takes the place of a noun, that is used in place of a noun, right? So we generally yeah, pronoun is for noun. तो ये हर जुबान में होता है. To avoid repetition, we have choose many words which are used in place of a noun. और obviously किसी कॉन्टेक्स्ट में कोई नाउन होता है तो ये प्रोनाउंस जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं. तो ही ये क्योंकि पर्सन को शो करता है तो पर्सनल प्रोनाउन है. दिस इज माय वॉच. ये इशारा करता है किसी चीज की तरफ. ठीक है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाती है. अली इज द बॉय हु ब्रॉट योर मैसेज. ये हु जो है ये अपने से पहले नाउन के साथ उसको उसकी तरफ रेफर करता है, तो इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं. और इसका तर्जमा हमेशा जो के मफहूम में होता है, जो, जौन सा, जैसे वगैरह. और ये हमेशा अपने से पहले नाउन के आते. ये वो हु नहीं है जो कौन के मफहूम में होता है, जैसे सब्जेक्ट के लिए होता है. वो उस वक्त हु जो होता है वो ये अगले में है. हु आर यू इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. ये उस वक्त इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, सवाल करती है. few have realized the truth. अब few जो है ये प्रोनाउन है. इधर ये प्रोनाउन है क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे खड़ा है. ये इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है क्योंकि ये जिन लोगों की तरफ इशारा कर रहे होते हैं उनका जिक्र जो आता है वो मुबहम होता है. द प्लेयर इज माइन. ये माइन जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है. ये मैनी पोजेशन को शो कर रहे हैं, जैसे mine, ours, yours, his, hers, theirs. ये सारी possessive pronoun है. Here is the great man himself. अब here is the great man तक बात खत्म हो गई थी, लेकिन यह है कि हमने इस बात को अब्दुल्ला बिस्किट का कहना यार, लेकिन यहाँ हमने इसको मजीद का हिमसेल्फ, यानी यहाँ अजीम आदमी खुद आया है. तो हिमसेल्फ जो है इट रेफर्स टू द मैन, तो इसको हम इंटेंसिव यानी जोर देने के लिए कहते हैं. और दे डोंट सी ईच अदर एनी मोर. ये रिसिप्रिकल प्रोनाउन है. रेसिप्रोकल नहीं, इसका तलफ्फुज है रिसिप्रिकल, यानी आपस में एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं. वो एक दूसरे से अब मजीद नहीं मिलते. सी इधर मिलने का मफहूम है. और he availed himself of the opportunity. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये होती है कि ये प्रोनाउन अगरचे फेल के बाद आती है, ऑब्जेक्ट की जगह पे होती है, ऑब्जेक्ट को शो करती है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट ही होता है. रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, तो इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. और ये याद रखिएगा कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो लाना जरूरी होता है. तो पुरानी अंग्रेजी में तो बहुत जरूरी था, और जो इंग्लिश इम्तहानात में आती है उसमें भी ये चीज पे सवाल जो है वो कभी कभी आ जा सकता है. तो ही अवेल हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी में हिमसेल्फ जो है ये ही की तरफ जा रहा है, और इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. कोई सवाल है तो पूछ लें. Anyone, someone. Need of pronoun. When we wish to speak of a name several times in succession, it is bad to repeat the noun. For example, Ahmed saw a flower in the garden. Ahmed liked the flower's color.
अब हम दोबारा अहमद को लाए हैं तो ये डजंट लुक नाइस, तो इसको हम क्या करेंगे? ही लाइक्ड द फ्लावर्स कलर। द चीफ यूज ऑफ pronoun is to save the repetition of nouns, so we can have the above sentence in this way. Ahmed saw a flower in the garden. He liked its color. He is used in place of the noun Ahmed. Definition of bagi is a word which is used instead of a noun or anything, any word used as a noun. यानी noun की जगह पे या anything, any word that is used as a noun, या कोई ऐसा लफ्ज जो कि noun की picture is not clear. Yeah, any you say that ये जो screen है वो clear नहीं आ रही. That will be your connection problem, because I've just asked, because there are other people from the this office, head office, which are who are uh, um, also having the same connection. Generally, but not always, pronoun pro plus noun stand for or refer to a noun, an individual or individuals or things. The noun which is referred to by a pronoun is called its antecedent. ये बड़ा याद रखने के लिए है, क्योंकि आपने ग्रामर करानी है 9-10 में, तो antecedent above is that. Ali reads a book. He is fond of reading. अब he जो है refers to Ali, तो Ali इस pronoun का antecedent होएगा. In the first sentence, the noun Ali is the antecedent of the pronoun he of the second sentence. Not all pronoun will refer to an antecedent. Remember कि तमाम pronouns के antecedent नहीं होते, जैसे indefinite pronoun के आमतौर पे everyone, someone, etc. Everyone in America earns over $1,000 a day, right? अब everyone जो है वो फिक्रे में उसके लिए जरूरी नहीं कोई antecedent हो. Obviously, it refers to the people in the bigger picture. लेकिन sentence में इसके लिए नहीं होगा. लेकिन जब he आ जाएगा तो he के लिए या तो फिक्रा उससे पहले फिक्रे में होगा, या किसी जगह किसी कॉन्टेक्स्ट में किसी को कह रहे हैं तो उस वक्त वो ये होगा. Here the word everyone has no antecedent. Since a pronoun is used instead of a noun, it must have the following noun characteristics. क्या नाउन की केस था, तो pronoun का भी केस होना चाहिए. खास तौर पे पर्सनल pronoun का. वो noun pronouns have cases, subjective case उसी तरह I, we, he, she, they, who. Objective case me, us, him, her, them, who, whom. Genitive case my, our, his, her, etc. ठीक है. Person pronouns refer to the person speaking, the person spoken to, and the person spoken about. So first, second, and third have different cases. यानी फर्स्ट पर्सन में जब प्रोनाउन जो है वो फर्स्ट पर्सन में हो तो इसका मतलब यह है कि इट रेफर्स टू द पर्सन स्पीकिंग, जो बंदा बोल रहा है. सेकंड पर्सन जिस बंदे से हम बात कर रहे हैं. अब थर्ड पर्सन जिस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं. तो अब इसी के मुताबिक प्रोनाउन जो है वो भी आएंगे. इज माई फ्रेंड, ही इज थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन. आई हैव availed myself, तो myself is reflexive pronoun. The shirt is mine, तो ये possessive pronoun है. तो ये different cases उसके मुताबिक जो है वो आ जाते हैं. इसी तरह इसमें जेंडर भी होता है, खास तौर पे थर्ड पर्सन में. थर्ड पर्सन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. मैस्कुलिन ही, हिम, हिमसेल्फ, हिज. फेमिनिन शी, हर, हरसेल्फ. नॉन पर्सनल न्यूट्रल
it, itself, its, or number. Like noun, first person, third person pronoun are different form for singular and plural. However, the second person uses the common form for singular and plural. Second person pronoun जो थी वो you. अब वो सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होती है और प्लूरल के लिए। एक जमाने में इसके सिंगुलर के लिए थी दाओ, दाओ, THOU, दाओ। और यू जो होती थी ये प्लूरल के लिए होती थी। बाल बंदे कहते हैं बदतमीज इंग्लिश है, वालिद को भी यू और बेटे को भी यू। ये जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना आप, अदब के लिए सिंगुलर के लिए भी बोलते हैं, प्लूरल के लिए भी बोलते हैं, बाद में छोटे के लिए भी बोलते हैं। इसी तरह यू बेसिकली एक बाअदब प्रोनाउन है और ये अदब के लिए बोली जाती है, एक फर्द वाहिद के लिए भी और जमा के लिए भी। तो इसको अंग्रेजी को बदतमीज ना समझिए, अंग्रेजी दुनिया की आसान तरीन जुबानों में से एक जुबान है। अब इधर वर्ब आ जाता है। वर्ब को हमने बड़ी तफसील से डिस्कस कर ली है। एडजेक्टिव आता है। अब नाउन और प्रोनाउन का कुछ थोड़ा सा आपने कर लिया। एडजेक्टिव अगेन रिक्वायर्स एनर्जी और इसमें थोड़ा सा फिर बोर्ड पे भी कराना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है इसको हम आज के लिए नाउन प्रोनाउन पे अगली में हम एडजेक्टिव और एडवर्ब कर लेंगे। और हमने बेसिकली ज्यादा जोर एडजेक्टिव और एडवर्ब पे देना है, क्योंकि यही असल में ये खास तौर पे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये कंटेंट वर्ब्स होते हैं। और ये कंटेंट वर्ब जो है ये इनको समझना जो है वो जरूरी होता है। बाकी तो ग्रामेटिकल वर्ब है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये वो। I'm going to finish it. So आगे आगे मुझे पता है इट्स टायरिंग, थक जाते हैं। नहीं नहीं, मे बी नॉट फॉर ऑल ऑफ यू, थिंग्स आर डिफिकल्ट फॉर। और क्या आप लोग जो हम लोग अपलोड करते हैं जो वीडियोस उनको देखते हैं? डू यू वॉच दोज वीडियोस? और क्या आप लोग जो वीडियोस जो हैं वो हम चलाते हैं, वो अपलोड करते हैं, वो देखते हैं? और क्या आप इनको दूसरों को भी रेफर करते हैं? हाँ, सेशन विल कंप्राइज ऑफ फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। तो ये तो मैंने आज सारे आपको करा दिए हैं, क्लॉजेस तो सारे करा दिए हैं। आई एम हैविंग दिस बिस्किट एंड a cup of coffee trying to be energized। इसको आप, ये तो हो गया, ये आज आज बता दिए आपको। इसी मजीद को थोड़ा सा ये है, ये टाइप ऑफ क्लॉजेस तो आपको बता दिए। नाउन क्लॉज है और एडजेक्टिव क्लॉज है और एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज तो आपको बता दिया कि वो टाइम को, प्लेस को, मैनर को शो करेगा और उसके साथ हमेशा वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ लगा हुआ होगा। और अगर वेयर, व्हेन, व्हाई फिक्रे में नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो कोई फ्रेज है जो टाइम को बता रहा है और या प्लेस को बता रहा है। ये सीधी सी, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं। ये टाइप ऑफ फ्रेजेस भी वही है। नाउन फ्रेज जैसे अभी ने नाउन क्लॉज कहा था, और ना एडजेक्टिव है वो अभी करा, अभी अगर आज करा देता तो अभी एडजेक्टिव फ्रेज हो जाता। नाउन को जो डिस्क्राइब करेगी वो एडजेक्टिव फ्रेज है, और जो वर्ब के टाइम को बताएगी वो अगर अ, वो फ्रेज है तो वो एडवर्ब है, और अगर उसके साथ वेयर, व्हेन, व्हाई लगा हुआ तो वो क्लॉज है। ओल्ड इंग्लिश को किसी दिन उसका दिखा दूंगा मैं आपको। रूल्स तो वो तो मैंने रूल्स करा दिए ना। ये जो समझे, ये मैंने ना बहुत सी पुरानी किताबों के भी रूल्स, ये जो मेरी किताब जो मैंने आपको भिजवा भी रहा हूँ जिसमें से थोड़ा सा हल्का कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि मैंने जदीद और कदीम टर्मिनोलॉजी जो है
वो गेम, वैसे मेरे पास 300-400 साल पुरानी किताबें पढ़ी हुई ग्रामर का, किसी वक्त मैं इसमें मैं देखता हूँ, निकालता हूँ और आपको दिखा दूंगा उनकी शक्लें कैसी होती थी, उनमें यही चीजें थी। लेकिन थोड़ा सा बार वो, हाँ वो आई विल शो इट टू यू, क्योंकि आई वांट ऑल ऑफ यू टू लव ग्रामर। फॉर मी ग्रामर इज वेरी, मैंने कहा ना ग्रामर जो है ये मेरा इसके साथ बड़ा पुराना ताल्लुक है। आई स्टडीड ग्रामर एक्चुअली फ्रॉम अरेबिक, और अब तो खैर मुझे कुछ याद वाद नहीं है, लेकिन अरबिक की मैंने कुछ ग्रामर्स पढ़ी हैं, अभी भी मेरे पास पढ़ी हुई हैं। कभी बड़ा दिल करता था, मैंने तो रखी हुई थी कि एक उम्र के दौर में जाके फिर मैं अंग्रेजी में अंग्रेजी छोड़ दूंगा और उनको करूंगा। लेकिन लगता है बंदा सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग एक टाइम पे आप, वो मेरी तरह भी जैसे मुझे होता है कि आई गॉट टू रीच एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द लेक्चर। ये जो सारी लगाना, इसमें बहुत से लोग भी इन्वॉल्व होते हैं मेरे साथ। असल मसला ये है कि अल्लाह करे कि इसके नतीजे में आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज के बारे में बेहतर हो जाए और आप लोग स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। अल्लाह ताला आप सबका के साथ दे इस काम में। राइट, लेट्स कॉल इट अ डे। इंशाल्लाह ताला we'll see each other on Friday. Thank you very much. Assalamu alaikum.